یہ بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ خراسان میں ایک بوڑھی خاتون رہتی تھی جس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ اس کا نام طارق تھا۔ طارق دکھنے میں تو ایک عام سا لڑکا تھا، لیکن اس کی کمر سے ایک تلوار لٹک رہی تھی۔ طارق جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا، یہ تلوار بھی اس کے ساتھ بڑی ہوتی جا رہی تھی۔ ایک رات طارق نے خواب دیکھا، اور پھر اگلے دن بھی طارق نے وہی خواب دیکھا، اور تیسرے دن پھر طارق نے وہی خواب دیکھا۔ اب طارق سمجھ گیا کہ یہ خواب ضرور سچا ہے، اور طارق کے چہرے سے خوشی صاف جھلک رہی تھی، اور اس نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ وہ یہ خواب کسی کو نہیں بتائے گا۔ جب اس کی ماں نے اس کی خوشی کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگا کہ اماں، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، لیکن وہ خواب میں کسی کو نہیں بتا سکتا۔ طارق کی ماں کہنے لگی کہ بیٹا، تم اپنا خواب مجھے سنا دو، میں کسی کو نہیں کہوں گی۔ لیکن طارق بولا، نہیں اماں، میں اپنا خواب کسی کو نہیں بتا سکتا۔ پھر طارق کی ماں غصہ ہو کر بولی، تمہیں خواب سنانا پڑے گا، ورنہ یاد رکھو میں تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کروں گی۔ لیکن طارق نے خواب نہ سنایا۔ اس پر ماں نے پہلے تو خوب ڈانٹ ڈپٹ کی اور پھر مار پیٹ کرنے لگی، لیکن طارق پر نہ ڈانٹ ڈپٹ کا کوئی اثر ہوا اور نہ ہی مار پیٹ کا۔ اتفاق سے وہاں سے شہر کا قاضی گزر رہا تھا۔ اس نے طارق کے رونے اور چیخنے چلانے کی آواز سنی تو وہ اپنے سپاہیوں سے کہنے لگا کہ جاؤ دیکھو کہ یہ کون زور زور سے چلا رہا ہے، ہو سکتا ہے کسی مظلوم کو ہماری مدد کی ضرورت ہو۔ تھوڑی دیر بعد سپاہیوں نے آ کر اطلاع دی تو قاضی کہنے لگا کہ میں اپنی زندگی میں کبھی نہیں رویا، اور نہ ہی میں کسی بچے کو روتے ہوئے دیکھ سکتا ہوں، اس لیے جاؤ اور اس لڑکے کو فوراً میرے سامنے حاضر کرو۔ سپاہیوں نے طارق کو قاضی کے سامنے پیش کیا۔ قاضی نے طارق سے اس کے رونے اور چیخنے چلانے کی وجہ دریافت کی۔ طارق کہنے لگا کہ جناب، میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، اور میری ماں مجھے اس لیے مار پیٹ رہی تھی کہ میں اپنا خواب اپنی ماں کو نہیں بتا رہا تھا۔ قاضی نے یہ سنا تو قاضی مسکرا کر بولا کہ بہت خوب، مجھے یقین ہے کہ وہ خواب واقعی بہت دلچسپ ہوگا۔ برخوردار، کیا تم میرے بیٹے بننا پسند کرو گے؟ طارق خوش ہو کر بولا، جی جناب، یہ میری بڑی خوش قسمتی ہوگی۔ قاضی نے ایک سپاہی کو طارق کی ماں کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں طارق کو اپنے پاس رکھ لوں، اس کی تعلیم و تربیت کا ذمہ میرے سر ہوگا، مجھے امید ہے کہ آپ انکار نہیں کریں گی۔ بوڑھی ماں نے جب یہ سنا تو اس کا غم خوشی میں تبدیل ہو گیا، اور وہ دوڑتی ہوئی قاضی کے پاس آئی اور خوش ہو کر قاضی سے کہنے لگی کہ جناب، آپ میرے بیٹے کو لے جائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اور پھر اپنے بیٹے کا مخاطب ہو کر کہنے لگی کہ بیٹا، تم قاضی صاحب کی فرما برداری کرنا اور ان کا ہر حکم ماننا۔ جب قاضی صاحب کی گاڑی کافی دور جا چکی تو قاضی صاحب نے طارق سے پھر پوچھا کہ برخوردار، اب بتاؤ کہ تم اتنی زور زور سے کیوں چلا رہے تھے؟ طارق کہنے لگا کہ جناب، میں اس لیے چلا رہا تھا کیونکہ میری ماں مجھے مار رہی تھی۔ قاضی نے پوچھا کہ تمہاری ماں تمہیں کیوں مار رہی تھی؟ طارق کہنے لگا، میری ماں مجھے اس لیے مار رہی تھی کیونکہ میں نے ایک خواب دیکھا تھا، اور میں اپنی ماں کو وہ خواب نہیں بتا رہا تھا، اور میں یہ خواب کسی کو نہیں سنا سکتا۔ قاضی مسکرا کر بولا، کیا مجھے بھی نہیں؟ طارق بے خوف ہو کر بولا، جی نہیں۔ پھر قاضی مسکرا کر کہنے لگا کہ کوئی بات نہیں، مجھے یقین ہے کہ گھر پہنچ کر تم اپنا خواب مجھے سنا دو گے۔ یہ کہہ کر قاضی نے کوئی اور بات چھیڑ دی، اور یہاں تک کہ وہ اپنے گھر پہنچ گئے۔ قاضی نے اپنے گھر پہنچ کر اپنے بچوں کو بلایا اور کہنے لگا، دیکھو بچوں، میں تمہارا نیا ساتھی لایا ہوں، تم اس کے ساتھ کھیلنا، لیکن اسے تنگ مت کرنا، کیونکہ اس نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے اور یہ اپنا خواب کسی کو بتانا نہیں چاہتا۔ سب سے بڑی لڑکی کہنے لگی، تم اپنا خواب مجھے ہی سنا ڈالو۔ لیکن طارق نے سر ہلا کر کہا، میں اپنا خواب کسی کو نہیں سنا سکتا۔ منجلی لڑکی بولی، کیا مجھے بھی نہیں؟ تب طارق نے انکار میں سر ہلا دیا۔ پھر سب سے چھوٹی لڑکی کہنے لگی، میں تو ضرور سنوں گی۔ طارق غصے سے بولا کہ اب اگر کسی نے ضد کی تو میں اسے پیٹ ڈالوں گا۔ یہ بات قاضی کو ناگوار گزری اور اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ لے جاؤ اس بدتمیز کو، اور جب تک اس کی عقل ٹھکانے نہ آ جائے اسے حویلی مت لے کر آنا۔ قاضی کے نوکر جب طارق کو لے جا رہے تھے تو اس کی تلوار زور زور سے ہلنے لگی، لیکن وہ خاموش رہا۔ نوکروں نے طارق کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، یہاں تک کہ وہ سب کچھ بھول گیا اور وہ خوشی خوشی ان کے ساتھ رہنے لگا۔ ایک دن قاضی کی چھوٹی لڑکی کا یہاں سے گزر ہوا، اسے طارق کو دیکھتے ہی اس کا خواب کا ذکر یاد آ گیا۔ وہ طارق سے کہنے لگی کہ اگر تم اپنا خواب مجھے سنا دو تو میں تم سے شادی کروں گی۔ یہ سن کر طارق کو غصہ آ گیا اور طارق نے 2-3 تھپڑ اسے مار دیے اور کہنے لگا، میں تم سے پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ اگر کوئی مجھ سے خواب کے بارے میں کچھ پوچھے گا
तो मैं उसे मारूंगा। काजी की लड़की रोती हुई काजी के पास गई और उसने सारी बात काजी को बता दी। जब काजी ने यह सुना तो काजी ने गुस्से में आकर कहा कि अब मैं उस लड़के को किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। उसी दिन शहर के बाहर एक फांसी का चबूतरा बनाया गया और शहर भर के लोग ये सारा मंजर देखने के लिए वहाँ पर जमा हो गए। जब तारिक को फांसी दी जाने वाली थी तो वहाँ पर एक सुनहरी घोड़ा गाड़ी आकर रुकी। उस गाड़ी पर शाही परचम लहरा रहा था और उस गाड़ी में मुल्क का सुल्तान बैठा हुआ था। उस सुल्तान ने हुक्म दिया कि इस लड़के की जान बख्श दी जाए। सुल्तान ने सारा माजरा सुनने के बाद कहा कि इस लड़के को मैं अपने साथ ले जाऊंगा और मुझे यकीन है कि यह लड़का अपना ख्वाब मुझे सुना देगा। काजी ने अदब से कहा कि अली जा, आप इस लड़के को अपने साथ ले जाइए, हम इस गुस्ताख का चेहरा नहीं देखना चाहते। म्यान में तारिक की तलवार ने 2-3 बार हरकत की और फिर जल्लाद ने तारिक की आंखों पर से पट्टी खोल दी। तारिक सुल्तान के साथ घोड़ा गाड़ी पर सवार हो गया। रास्ते में सुल्तान तारिक के साथ बड़ी हंसी मजाक वाली बातें करता रहा। थोड़ी देर बाद सुल्तान ने तारिक से पूछा, बरखुरदार, आखिर तुमने ऐसा कौन सा ख्वाब देखा है जो तुम किसी को बताना नहीं चाहते? तारिक ने अदब से कहा कि अली जा, जब तक ख्वाब की ताबीर पूरी नहीं हो जाती मैं अपना ख्वाब किसी को नहीं सुना सकता। सुल्तान मुस्कुरा कर बोला कि कोई बात नहीं, तुम अपना ख्वाब मुझे नहीं सुना सकते तो शहजादी मुनीज़ा को सुना डालो। तारिक ने अदब से कहा कि नहीं, मैं अपना ख्वाब किसी को नहीं सुना सकता। फिर सुल्तान ने तारिक से कोई बात ना की क्योंकि उसे यकीन था कि शहजादी मुनीज़ा अपनी अक्लमंदी और होशियारी के साथ सारे राज उगलवा लेगी। जब गाड़ी महल में पहुंची उस वक़्त शहजादी मुनीज़ा बाग में फूल चुन रही थी। जब उसने सुल्तान की गाड़ी देखी तो वो दौड़ती हुई गाड़ी के पास आई, लेकिन तारिक को देखकर वहीं पर ठहर गई। सुल्तान कहने लगा, देखो बेटा, मैं इसे फांसी के फंदे से उतार कर लाया हूँ। ये बेवकूफ़ अपनी एक छोटी सी जिद के लिए अपनी जान गंवा देता। फिर सुल्तान मुस्कुरा कर बोला कि इसने एक ऐसा ख्वाब देखा है जो ये किसी को नहीं सुनाना चाहता, इसीलिए काजी भी गुस्से में आकर इसे फांसी पर चढ़ा देता। अगर मैं वहाँ पर वक्त पर ना पहुँचता तो आज ये जिंदा ना होता। उसके बाद सुल्तान ने तारिक को मेहमान खाने में ठहराया और उसकी खूब खिदमत की। एक दिन शहजादी मुनीज़ा वहाँ से गुजरी। वो ज़र्क बर्क कपड़ों में बिल्कुल आसमानी मखलूक नज़र आ रही थी। तारिक ने उसे देखा तो वो देखता ही रह गया। शहजादी मुनीज़ा तारिक से कहने लगी कि तुम अपना ख्वाब मुझे सुना दो, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुमसे शादी कर लूँगी। लेकिन तारिक सर झुका कर बोला, ऐ शहजादी, मैं अपना ख्वाब उस वक़्त तक किसी को नहीं बता सकता जब तक उसकी ताबीर मालूम ना कर लूँ। कई दिनों तक ये राज मेरे सीने में महफूज है और न जाने ऐसे ही कब तक रहेगा। शहजादी तारिक से ख्वाब के बारे में पूछने के लिए इसरार करती रही। पहले तो तारिक उसे प्यार से समझाता रहा, लेकिन जब शहजादी का इसरार बढ़ने लगा तो तारिक ने गुस्से में आकर शहजादी को एक थप्पड़ मार दिया। शहजादी के नाक से खून बहने लगा और शहजादी वहाँ से चीखती चिल्लाती भागी। जब सुल्तान ने अपनी बेटी का ये हाल देखा तो सुल्तान एकदम सन्नाटे में आ गया और जब उसे पूरी वजह मालूम हुई तो सुल्तान गुस्से से कहने लगा कि मैं इस गुस्ताख को नहीं छोड़ूंगा। फिर सुल्तान ने हुक्म दिया कि एक बहुत बड़ा मीनार तामीर किया जाए। फिर बहुत से मजदूर मीनार तामीर करने लगे। शहजादी ने कुछ मजदूरों को अपने पास बुलाया और कहने लगी कि वो मीनार में कुछ खिड़कियां बना दें और वो खिड़कियां ऐसी होनी चाहिए कि वो किसी को नज़र ना आएँ और वो खिड़की इतनी बड़ी हो कि उसके अंदर से खाना और पानी दिया जा सके। मजदूरों ने शहजादी के हुक्म की तामील की और उन्होंने वहाँ पर खिड़की बना दी। शाम के वक्त तारिक को मीनार में उतार दिया गया और ये मंजर देखने के लिए बहुत से लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए थे। हर रोज़ शहजादी मुनीज़ा तारिक के लिए खिड़की के अंदर से खाना भेजती और बादशाह भी हर रोज़ सिपाही को भेजता कि वो मीनार के अंदर जाकर देखे कि वो अभी ज़िंदा है कि नहीं। और सिपाही हर रोज़ सुल्तान को ये इत्तला देता कि तारिक ज़िंदा सलामत है और पहले से भी ज़्यादा सेहतमंद है। बादशाह फिक्रमंद होकर कहने लगा, ज़रूर ये लड़का कोई जादूगर है। एक दिन एक मंगोल काजी सुल्तान के दरबार में हाजिर हुआ और उसने सरकंडे की 3 छड़ियाँ सुल्तान को दी और बोला कि मेरे आका ने यह दरियाफ्त किया है कि इनमें से कौन सी छड़ी जड़ के करीब उगी थी और कौन सी सरकंडे के दरमियान में और कौन सी सिरे पर, और अगर आप इसका जवाब ना दे सके तो मंगोल खान के साथ जंग होगी। सुल्तान ये सुनकर बहुत परेशान हुआ और उसने तीनों छड़ियों का मुआयना किया, लेकिन उन तीनों में कोई भी फ़र्क ना था। शहजादी अपने बाप को फिक्रमंद देखकर बोली, अब्बा हजूर, आप इसकी फ़िक्र ना करें, मैं इसका हल ज़रूर ढूंढ निकालूंगी। फिर शहजादी दौड़ती हुई मीनार के पास गई और उसने सारा वाक़या तारिक को बता दिया। तारिक सुनकर कहने लगा कि तुम बादशाह के पास जाओ और उसे कहो परेशान ना हो,
वो तीनों छड़ियों को पानी में डाल दे। जो छड़ी पानी के बिल्कुल तह में डूब जाए तो समझ लेना वो छड़ी सरकंडे की जड़ में उगी थी, और जो पानी के दरमियान में ठहर जाए वो छड़ी का दरमियानी हिस्सा है, और जो पानी पर तैरती रहे वो सरकंडे का ऊपरला हिस्सा है। शहजादी ने बिल्कुल ऐसा ही किया। सुल्तान ने तीनों छड़ियों को पानी में डाल दिया और फिर उन पर निशान लगा दिए ताकि वो कासिद को वो छड़ियाँ वापस करे तो गलती का कोई इम्कान ना रहे। अगले रोज़ सुल्तान ने वो छड़ियाँ वापस कर दी। मंगोल खाकान अपने सवाल का जवाब पाकर हक्का भक्का रह गया और यूं जंग का खतरा कुछ सालों के लिए टल गया। फिर कुछ अरसा गुजरने के बाद मंगोल खाकान के दिल में फिर से जंग का ख्याल आया, क्योंकि उसे जंग के लिए कोई न कोई बहाना तो चाहिए था। इसने फिर से कासिद को सुल्तान के पास भेजा। कासिद ने 3 एक ही रंग के चूजे सुल्तान के सामने रखे और कहने लगा, हमारे बादशाह ने पूछा है कि इनमें से कौन सा बच्चा सुबह के वक्त पैदा हुआ, कौन सा दोपहर को और कौन सा शाम के वक्त, और अगर आप इसका जवाब नहीं दे पाए तो जंग के लिए तैयार हो जाएं। यह सुनकर सुल्तान का दिल डूबने लगा, क्योंकि उसी साल मुल्क में ताउन के मर्ज से बहुत सा नुकसान मुल्क में हो चुका था। पिछली बार तो शहजादी ने किसी न किसी तरह से उसे बचा लिया था। फिर शहजादी ने अपने बाप को परेशान देखा तो कहने लगी, अब्बा हुजूर आप परेशान ना हो, अल्लाह ताला कोई ना कोई हल निकाल देगा। ये कहकर शहजादी दौड़ती हुई मीनार के पास गई और उसने सारा वाक़या तारिक को सुना दिया। तारिक कहने लगा कि फ़िक्र ना करो, रोज़ की तरह तुम आज रात भी सोने के लिए लेट जाओ और फिर रात के पिछले पहर उठकर बैठ जाओ और बताना कि सुल्तान मंगोल खाकान के सवाल का जवाब ना दे सका, इसलिए मंगोल आपको उठाकर ले जा रहे हैं। इतनी ही देर में मीनार के अंदर से एक लड़का नमूदार होता है और वो मंगोलों के सवालों का जवाब दे देता है। शहजादी ने बिल्कुल ऐसा ही किया जैसा तारिक ने कहा था। सुल्तान ने फ़ौरन मीनार को गिराने का हुक्म दिया और उसके कैदी को उसके सामने हाजिर करने को कहा। तारिक को सुल्तान के सामने हाजिर किया गया। सुल्तान कहने लगा कि अब तुम्हारी गलती की सज़ा पूरी हो चुकी है। बहरहाल मैं तुम्हारी आज़ादी का हुक्म देता हूँ, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि तुम इस मुश्किल वक्त में हमारा साथ दो। ये कहकर सुल्तान ने मंगोल खाकान का खत निकालकर तारिक को दिया और कहा, लो इसे पढ़ो और बताओ कि तुम इसमें हमारी मदद किस तरह कर सकते हो, और याद रखो कि अगर मैं इसका जवाब ना दे सका तो इसका नतीजा हमारी तबाही और बर्बादी होगा। तारिक ने वो खत पढ़ा और सुल्तान से कहने लगा, आप इत्मीनान रखिए, पहले आप 3 एक जैसे प्याले मंगवा लीजिए। एक प्याले में जिनसी, दूसरे में गेहूँ और तीसरे में जौ भरे हुए हों। जो चूज़ा गेहूँ खाए वो सुबह पैदा हुआ, और जो जौ खाए वो दोपहर में पैदा हुआ, और जो जिनसी खाए वो रात को पैदा हुआ। सुल्तान ने तारिक की बात पर अमल कर लिया और यूँ उसने चूज़ों की शनाख्त कर ली। इसने तीनों चूज़ों को निशान लगाकर मंगोल खाकान के पास वापस भेज दिया। मंगोल खाकान का मंसूबा धरे का धरा रह गया। फिर इसने अपनी खाला को बुलाया, जो मुल्क की सबसे चालाक औरत है। इसने आकर उसे बताया कि तुम्हारे सवालों के जवाब बादशाह ने नहीं दिए। इन सवालों का जवाब देने वाला एक बूढ़ी माँ का बेटा है। अगर वो जिंदा रहा तो एक दिन तख्त पर बैठेगा। अगर तुम सुल्तान का मुल्क फ़तह करना चाहते हो तो पहले उस लड़के को यहाँ पर बुलाकर मार डालो, वरना मैं देख रही हूँ कि वो लड़का तुम्हारे लिए भी ख़तरनाक साबित हो सकता है। मंगोल खाकान ने फ़ौरन एक सिपाही के हाथ ये पैगाम सुल्तान के यहाँ भिजवा दिया कि महल में जो नौजवान ठहरा हुआ है उसे हमारे पास भेज दिया जाए, वरना हमारी फ़ौज तुम्हारे मुल्क को तबाह बर्बाद कर देगी। सुल्तान मंगोल खाकान का खत पढ़कर बहुत रंजीदा हुआ, क्योंकि वो तारिक की खिदमत का बहुत शुक्रगुजार था। जब उसने ये बात तारिक को बताई तो तारिक हंसने लगा और सुल्तान से कहने लगा कि अली जा, आप मेरे जैसे ही 2 हमशक्ल लड़के और तलाश कर दीजिए, बाकी सब कुछ मैं देख लूँगा। सुल्तान ने तारिक के 2 हमशक्ल लड़कों को तलाश कर लिया। अब तारिक ने उन्हें अपने जैसे ही कपड़े और जूते पहनाए और उनमें अब कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा था। सुल्तान ने तीनों लड़कों को कासिद के साथ मंगोल खाकान के पास भेज दिया। मंगोल खाकान ने उनकी खूब खिदमत की और उनका हाल दरियाफ्त किया। तीनों लड़कों ने एक ही आवाज़ में मंगोल खाकान के सवाल का जवाब दिया। मंगोल खाकान ने उन्हें बैठने के लिए इशारा किया। तीनों एक ही वक्त में बैठे और एक ही वक्त में खड़े हुए। मंगोल खाकान इनमें कोई फ़र्क महसूस ना कर सका। फिर मंगोल खाकान की खाला कहने लगी कि कल तुम बड़ी आसानी से उस लड़के को पहचान लोगे जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। तुम जिस लड़के की आस्तीन फटी हुई देखो उसे फ़ौरन कत्ल कर देना। फिर रात के वक़्त वो तीनों लड़के एक ही कमरे में सो गए। रात के वक़्त वही बूढ़ी औरत उस कमरे में दाखिल हुई जहाँ तीनों लड़के वो एक ही पलंग पर सो रहे थे। दरअसल वो बूढ़ी औरत एक जादूगरनी थी और उसने अपने जादू के ज़ोर से ये मालूम कर लिया कि इनमें से तारिक कौन है
और फिर उसने एक कैंची के साथ तारिक की आस्तीनों को फाड़ दिया और खामोशी के साथ वहाँ से चली गई। सुबह उठकर जब तीनों लड़कों ने तारिक की आस्तीनें फटी हुई देखीं तो उन्होंने भी अपनी अपनी आस्तीनें फाड़ कर फेंक दी। फिर ये तीनों लड़के मंगोल खाकान के साथ नाश्ता करने के लिए पहुँचे और बूढ़ी जादूगरनी एक खिड़की के अंदर से उन्हें देख रही थी कि अचानक उसने देखा कि तीनों लड़कों की आस्तीनें फटी हुई हैं और मंगोल खाकान एक बार फिर से तारिक को पहचानने में नाकाम हो गया। आखिरकार मंगोल खाकान ने तीनों लड़कों को खुरासान वापस भेज दिया। शहजादी मुनीज़ा और सुल्तान तारिक को देखकर बहुत खुश हुए और फिर सुल्तान को ज़्यादा अरसे तक चैन से रहना नसीब ना हुआ, क्योंकि एक दिन फिर मंगोल खाकान ने तारिक को बुला भेजा। कासिद ने आकर मंगोल खाकान का पैगाम सुल्तान को कहा कि यह लड़का बहुत ख़तरनाक है, इसलिए इसे वापस हमारे पास भेज दिया जाए, लेकिन इस बार इसे अकेला ही भेजा जाए। शहजादी और सुल्तान बहुत रंजीदा हुए। तारिक कहने लगा कि आप फिक्र ना करो, मैं हर काम को ठीक कर दूंगा। फिर अगली सुबह तारिक सफ़र पर रवाना हो गया। जब तारिक मंगोल खाकान के महल के पास पहुंचा तो दरवाजे पर ही वो जादूगरनी खड़ी थी और कहने लगी कि तुम आखिरी बार ही इस दरवाजे से गुजर रहे हो, अब तुम्हें जिंदा इस दरवाजे से निकलना नसीब नहीं होगा। तारिक की म्यान में जो तलवार लटक रही थी वो 2-3 बार ज़ोर ज़ोर से हिली, लेकिन तारिक ने उस बूढ़ी औरत की बात पर कोई ध्यान ना दिया। जब तारिक सहन में पहुंचा तो वहाँ बहुत से मंगोल सिपाही अपनी अपनी तलवारें लिए खड़े थे। फिर तारिक की तलवार बिजली की तेज़ी की तरह म्यान से निकली और उन सब सिपाहियों को गाजर मूलियों की तरह काट दिया। उस बूढ़ी जादूगरनी ने जब ये देखा तो वो समझ गई कि जब तक इस नौजवान के पास ये तलवार है तो कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उस जादूगरनी ने तलवार को चुराने की कोशिश की, लेकिन तलवार म्यान से निकली और उसने उस बूढ़ी जादूगरनी की नाक को जड़ से काट दिया। वो रोती पीटती मंगोल खाकान के पास पहुंची। मंगोल खाकान ने पूरी फौज को हुक्म दिया कि वो तारिक को पकड़कर उसकी तलवार छीन ले, लेकिन तारिक की तलवार ने पूरी फौज का सफाया कर दिया और तारिक को एक खरांच तक ना आई। और दूसरी तरफ सुल्तान ने बहुत सी फौज इकट्ठा की और बगदाद से एक खलीफा ने उसकी मदद के लिए एक ज़बरदस्त लश्कर भेजा। इस फौज के साथ सुल्तान और शहजादी मुनीज़ा मंगोलों के साथ जंग करने के लिए निकल पड़े। जब वो मंगोलों के मुल्क के बिल्कुल करीब थे तो उन्हें सामने से तारिक आता हुआ दिखाई दिया। फिर तारिक ने बताया कि उसने क्या कारनामा सरअंजाम दिया है और फिर पूरी फौज नारे लगाने लगी और तारिक को लेकर महल वापस पहुंच गई। सुल्तान ने तारिक को अपने पास बिठाया और कहा, बेटे, तुम्हारी अक्लमंदी, बहादुरी, दानिशमंदी, इन सब ने मुल्क को बचा लिया है। अब तुम शहजादी मुनीज़ा से शादी करोगे। ये बात सुनकर पूरे दरबार में खुशी फैल गई। तारिक की आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगा, आली जा, मैं एक मामूली सी बूढ़ी औरत का बेटा हूँ। शहजादी से शादी मेरे लिए बाइसे फ़ख्र होगी, लेकिन क्या आपको वाकई मुझ पर भरोसा है? सुल्तान कहने लगा कि तुमने 3 बार मेरी सल्तनत को तबाही से बचाया है। तुमने वफादारी, अकल और जुर्रत का सबूत दिया है। अगर कोई शख्स शहजादी मुनीज़ा के काबिल है तो वो तुम हो। शहजादी मुनीज़ा शर्मा गई, लेकिन वो भी दिल ही दिल में बहुत खुश थी। और फिर शादी की तैयारियां होने लगी। हर तरफ चरागा किया गया और पूरा शहर खुशियों में डूब गया। शादी के दिन तारिक ने वही तलवार अपनी कमर से बांधी जो बचपन से आज तक उसके साथ थी। और जब निकाह मुकम्मल हुआ तो अचानक आसमान पर बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी और तारिक की तलवार अचानक चमकने लगी। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए। अचानक एक आवाज़ गूंजी, तारिक, अब तेरा ख्वाब पूरा हो गया। यह सुनकर तारिक चौंक गया। सुल्तान ने पूछा कि बेटा ये क्या मुआजरा है? तारिक कहने लगा कि अली जा, मेरा ख्वाब ये है कि एक दिन मैं ऐसी तलवार का मालिक बनूंगा जो रोशनी और सच्चाई की अलामत हो। जिस दिन ये तलवार नूर बरसाएगी तो उस दिन मेरी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा। ये कहकर तारिक ने तलवार निकाली और आसमान की तरफ उठा दी। नूर के बादल छट गए और सूरज की किरणों ने महल को मुनव्वर कर दिया। शहजादी मुनीज़ा मुस्कुराकर बोली, अब बताओ, क्या तुम्हारा ख्वाब मुकम्मल हो गया? तारिक कहने लगा कि हाँ, मेरा ख्वाब मुकम्मल हो गया, लेकिन अगर तुम मेरे साथ रहो तो ये ख्वाब हमेशा ज़िंदा रहेगा। ये सुनकर तालियों की गूंज पूरे महल में सुनाई दी। सुल्तान ने दोनों के सरों पर हाथ रखकर उन्हें दुआ दी और यूं तारिक और मुनीज़ा की कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।